صرف تمہیں ہی بلایا جاتا ہے، صرف اسے ہی بتایا جاتا ہے، صرف مجھے ہی پوچھا جاتا ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے اونلی۔ اونلی کے بعد آ جایا کرے گا سبجیکٹ، سبجیکٹ کے بعد لکھیں گے ہم ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد آ جایا کرے گا وی3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے، اور آخر میں لکھنا ہوگا ہمیں ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صرف تمہیں ہی بلایا جاتا ہے یعنی صرف تمہیں ہی بلایا جاتا ہے۔ اونلی یو آر انوائٹڈ، اونلی یو آر انوائٹڈ۔ یو یہ سبجیکٹ ہے، آر یہ ہیلپنگ ورب ہے، انوائٹڈ یہ وی3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صرف اسے ہی بتایا جاتا ہے، صرف اسے ہی بتایا جاتا ہے۔ اونلی ہی از ٹولڈ، اونلی ہی از ٹولڈ۔ ہی یہ سبجیکٹ ہے، از یہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے، ٹولڈ یہ وی3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب۔ لیٹس موو آن۔ صرف مجھے ہی پوچھا جاتا ہے۔ اونلی آئی ایم آسکڈ، اونلی آئی ایم آسکڈ۔ آئی یہ سبجیکٹ ہے، ایم یہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے، اور آسکڈ یہ وی3 ہے یعنی تھرڈ فارم آف ورب جس کو پاسٹ پارٹیسپل فارم بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ صرف انہیں ہی بھیجا جاتا ہے۔ only they are sent، only they are sent۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ صرف تمہیں ہی کہلایا جاتا ہے، صرف تمہیں ہی کہلایا جاتا ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا، وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی، آپ نے مجھے خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کے سوا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نتھنگ بٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ، سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے اگر ہے تو۔ اس کے بعد مین ورب، یہ بھی ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا۔ مین ورب کے بعد نتھنگ بٹ وچ مین کے سوا یا کے علاوہ۔ نتھنگ بٹ کے بعد V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب، اور اس کے بعد ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا یعنی تم نے مجھے آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ You gave me nothing but tears، You gave me nothing but tears۔ gave یہ give کا سیکنڈ فارم ہے اور یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے۔ You gave me nothing but tears یعنی آپ نے مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ You یہ سبجیکٹ ہے، me یہ آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ، tears mean آنسو۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ تنے مارنے کے سوا کچھ نہیں کرتی، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے۔ She does nothing but dance، She does nothing but dance۔ She یہ سبجیکٹ ہے، does یہ یہاں مین ورب ہے۔ nothing but mean کے سوا یا کے علاوہ، dance mean تنے مارنا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ آپ نے مجھے خوشیوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ You gave me nothing but happiness، You gave me nothing but happiness۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ
फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने बहस के सिवा कुछ नहीं किया, यानी उसने बहस के अलावा कुछ नहीं किया, बस सिर्फ बहस किया है। ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू। ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू। ये सब्जेक्ट है डिड, ये यहाँ मेन वर्ब है और ये सिंपल पास्ट टेंस है। नथिंग बट मीन के सिवा या के अलावा, आर्ग्यू मीन बहस करना। ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू। उसने बहस के सिवा कुछ नहीं किया। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने चावल के सिवा कुछ नहीं खाया। मैंने चावल के सिवा कुछ नहीं खाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। इस काम को किया जाना अभी बाकी है। खाना खाना अभी बाकी है। दोस्तों को बुलाना अभी बाकी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाकी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में येट टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है। इसके बाद येट टू बी विच मीन अभी बाकी है। येट टू बी के बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। V3 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस काम को किया जाना अभी बाकी है, यानी ये काम अभी तक नहीं हुआ है, इसको किया जाना अभी बाकी है। दिस वर्क इज येट टू बी डन। दिस वर्क इज येट टू बी डन। दिस वर्क ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है। डन ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खाना खाना अभी बाकी है। फूड इज येट टू बी ईटन। फूड इज येट टू बी ईटन। फूड ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यूज हुआ है इज येट टू बी मीन अभी बाकी है। ईटन ये थर्ड फॉर्म है इट का। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों को बुलाना अभी बाकी है। फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड। फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड। फ्रेंड्स अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है। कॉल ये कॉल का थर्ड फॉर्म है विच मीन बुलाना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। चोरों को पकड़ा जाना अभी बाकी है। चोरों को पकड़ा जाना अभी बाकी है। द thieves are yet to be caught. The thieves are yet to be caught. thieves ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज हुआ है। yet to be मीन अभी बाकी है। caught ये केच का थर्ड फॉर्म है विच मीन पकड़ा जाना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। चाय पीना अभी बाकी है। चाय पीना अभी बाकी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु। बार बार यहाँ मत आओ। बार बार मुझे फ़ोन मत करना। बार बार वो आपके बारे में पूछ रहा था।
ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओवर एंड ओवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ओवर एंड ओवर। सेंटेंस ये कंप्लीट सेंटेंस होगा और ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। सेंटेंस को समझने के लिए टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। और ओवर एंड ओवर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बार बार यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर ओवर एंड ओवर। डोंट कम हियर ओवर एंड ओवर। डोंट कम हियर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, विच मीन यहाँ मत आओ। ओवर एंड ओवर मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बार बार मुझे फ़ोन मत करना, डोंट कॉल मी ओवर एंड ओवर। डोंट कॉल मी ओवर एंड ओवर। डोंट कॉल मी मीन मुझे फ़ोन मत करना, ओवर एंड ओवर बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बार बार वो आपके बारे में पूछ रहा था। ही वॉज आस्किंग अबाउट यू ओवर एंड ओवर। ही वॉज आस्किंग अबाउट यू ओवर एंड ओवर। ही वॉज आस्किंग अबाउट यू ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो आपके बारे में पूछ रहा था। ओवर एंड ओवर मीन बार बार। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। बार बार आप एक ही गलती करते हो। बार बार आप एक ही गलती करते हो। यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। यू मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बार बार वो नाकाम होता है, बार बार वो नाकाम होता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। पढ़ने के अलावा वो काम भी करता है। क्रिकेट के अलावा मैंने फुटबॉल भी खेला। उर्दू के अलावा वो अंग्रेज़ी भी बोल सकता है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं के अलावा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन एडिशन टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन एडिशन टू प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। इसके बाद कामा अगर लिखना है तो कामा के बाद कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू ये वही का वही रहेगा, विच मीन के अलावा। इन एडिशन टू ये मिडल में भी यूज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देख। पढ़ने के अलावा वो काम भी करता है, यानी पढ़ता तो वो वैसा भी है, इसके साथ साथ वो काम भी करता है। यानी पढ़ने के साथ साथ वो काम भी जाता है, काम भी करता है। इन एडिशन टू स्टडीइंग ही ऑल्सो वर्क्स। In addition to studying, he also works. Studying ये वर्ब प्लस आईएनजी है, जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्रिकेट के अलावा मैंने फुटबॉल भी खेला, यानी क्रिकेट के साथ साथ मैंने फुटबॉल भी खेला। इन एडिशन टू क्रिकेट आई ऑल्सो प्लेड फुटबॉल। इन एडिशन टू क्रिकेट आई ऑल्सो प्लेड फुटबॉल। क्रिकेट ये नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उर्दू के अलावा वो अंग्रेज़ी भी बोल सकता है, यानी उर्दू के साथ साथ वो अंग्रेज़ी भी बोल सकता है, उसे अंग्रेज़ी बोलना भी आती है। इन एडिशन टू उर्दू ही कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। इन एडिशन टू उर्दू ही कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। उर्दू ये नाउन है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पढ़ाने के अलावा वो खाना भी बनाती है, यानी पढ़ाने के साथ साथ वो खाना भी बनाती है। इन एडिशन टू टीचिंग शी ऑल्सो कुक्स फूड। इन एडिशन टू
टीचिंग शी ऑल्सो कुक्स फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पढ़ने के अलावा वो क्रिकेट में भी अच्छा है। पढ़ने के अलावा वो क्रिकेट में भी अच्छा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। दिन के बाद रात आती है, इतवार के बाद पीर आता है, हार के बाद जीत आती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। नाउन, नाउन के बाद इज़ के बाद फॉलोड बाय के बाद फिर यूज़ करना होगा आपको नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिन के बाद रात आती है, डे इज़ फॉलोड बाय नाइट, डे इज़ फॉलोड बाय नाइट। डे ये नाउन है और नाइट ये भी नाउन है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इतवार के बाद फिर आता है, संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे, संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे। संडे ये भी नाउन है और मंडे ये भी नाउन है। हार के बाद जीत आती है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हार के बाद जीत होती है। डिफीट इज़ फॉलोड बाय विक्ट्री, डिफीट इज़ फॉलोड बाय विक्ट्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, व्हिच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मार्च के बाद अप्रैल आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है। मार्च इज़ फॉलोड बाय अप्रैल, मार्च इज़ फॉलोड बाय अप्रैल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ए के बाद बी आता है, ए के बाद बी आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।